today I got a chance to chat with another old student of ours, an alumnus of Shri Mata Vaishno Devi University, Mr. Ratandeep Sharma. Mr. Ratandeep Sharma was a BTech in in electronics and communication engineering from 2015 to 2019. Was a batch topper, 9.01 CGPA, and a gold medalist. Also, he joined the JNK Bank probationary officer in 2021 and then went on to crack the JKAS examination in 2021. His rank was 09, that is very prestigious, and is now working or say is undergoing training. अभी under training complete हो गई है or still undergoing? The training proper जो हमारा module था got over, so currently we are under probation for 2 years now. Acha, under probation for 2 years, and you have got the administrative branch, right? Right. So welcome Ratandeep once again, है ना? It's been long कि हम जो है एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे because of so many busy schedule of ours. So thank you Ratandeep once again to join, and let us start the interview. We'll keep it very informal. और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम बात करते रहेंगे. We will keep it Hindi as well as English. तो first thing first, बताइए कितना टाइम लग गया सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने? So thank you very much for the kind intro. And sir, you missed one point. I also got a 10-pointer in introduction to logic. Yeah. This is how we started. It is not only that you got a 10-pointer, but you were the batch max, na? मतलब batch topper भी था. So, and I was not teaching you, so all credit goes to you. So that was an amazing thing for sure. And you also took a lot of subjects, ना? अंदर में मेरे ख्याल से दूसरे subjects बहुत सारे. Human rights, I studied human rights, and then एक और कोई subject. Philosophy of science. Yeah. And in all those subjects also you topped. So sir, coming to the question. So sir, I started preparing in 2019 after I passed out from the college. So ऐसा था कि sir, I had this thing in my mind starting से कि I have to give this exam. Now, this was a crystal clear thing. However, sir, in the last year, एक वो हो गया था कि कॉर्पोरेट लाइफ भी सिंस आई डू नॉट नो एनीवन इन पर्सन जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा है, एंड ऑल्सो एक सेंस ऑफ बायस था कि नहीं कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी है वैसी है. सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर. सो इसलिए 2019 में जो मेरा लास्ट सेम था 8th सेम था, तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी. आई वेंट टू बैंगलोर, बट देन वहाँ जाके आई फाइनली मेड अ डिसीजन कि नहीं, आई वांट टू सिट फॉर यूपीएससी एंड ऑल. तो दैट इज हाउ द थिंग केम. Second, sir, तैयारी कब से की? On a very, on a very general basis, I would say, sir, Constitution तो you already know कि मैं पढ़ता था कॉलेज में, वो आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ता था, एंड उससे थोड़ी एक बिल्डअप हो गया था मेरे माइंड में. बट जो प्रॉपर सर तैयारी हुई थी दैट स्टार्टेड इन 2019. एंड 2019 में सर एक साल आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ कोचिंग वगैरह की, एंड 20 में वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद यूपीएससी. आई कुड नॉट गेट थ्रू, एंड उस साल फिर ये बैंक का एग्जाम था. तो सिंस आई एम एन इंजीनियर, तो साइकोलॉजिकली सर आई हैड दैट प्लान कि व्हेन आई नीड अ बैकअप, तो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आई एम गुड विद दैट. सो जस्ट टू दैट एग्जाम. एंड सर फाइनली नेक्स्ट ईयर 21 जो था उसमें फिर केस का भी इसी साल आया था. सो I gave that exam, and that exam continued for more than a year probably. 23 Jan में, इसी साल Jan में results came out. So sir, जो तैयारी थी, I would say for in a very general sense, I would say an year and a half लगेगा किसी भी जनरल इंसान को. And then sir उसके बाद एग्जाम ही एक साल होता है, तो एक साल तो सिर्फ एग्जाम ही चलेगा. तो even if the fastest possible way to get through the exam, you will have to give 2 years into it. So I started in 2019, and sir 2023 I'm here. So, okay. So that is how it goes. Sorry. This question gives birth to another question. कि if you have started preparing, say after your graduation, है ना? So is it like the right time as per your understanding? क्या graduation के बाद preparation start करनी चाहिए, graduation के साथ preparation करनी चाहिए, और दूसरी चीज की optionals कैसे choose करनी? तो सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए. सो सर मेरे हिसाब से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एंड ऑल्सो बीइंग फ्रॉम एसएमवीडू वी आर नॉट एन आईआईटी और आईआईएम और समथिंग. तो सर एक लेवल ऑफ एक्सपोजर जो होता है वो थोड़ा कम रहता है. तो हमें सर प्रॉब्लली, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, एट मैक्स सर 4th ईयर की स्टार्टिंग से यू शुड बी इन द जोन.
एंड सर Okay. ऑल्सो पोस्ट कोविड ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो सब कुछ ऑनलाइन है, अगर नहीं भी लेनी है तो यूट्यूब पे रिसोर्सेज, ऑनलाइन बुक्स के PDF, एवरीथिंग इज अवेलेबल. तो सर द ओनली थिंग विच इज आवर विल पावर. So True. that Very is a big issue, sir. And college में sir we don't realize one thing is कि college में कोई pressure नहीं है, especially 4th year में. बस उसी phase में चले जाता है कि last year है. But the reality is कि that is like the most important time, क्योंकि उस टाइम आप पे कोई pressure नहीं है जॉब का. क्योंकि जब आप एक बार एग्जाम देने लगते हैं और जब आपको सेटबैक्स मिलते हैं एग्जाम ना क्लियर होने के, सो इट बिकम्स अ बिग डील. फिर जब वो प्रेशर आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, फैमिली का, सोसाइटी का, फिर वो एक्चुअली आपको पढ़ाई एक बर्डन लगती है. बट कॉलेज में सर अगर हम करें तो वो एक तो आउट ऑफ एनर्जी और वो जील बहुत ज्यादा होती है अर्ली 20s में. तो सर वो चीज मेरे को लगता है हमें हार्नेस करनी चाहिए, कैपिटलाइज करनी चाहिए. तो आई वुड से सर 4th ईयर में आपको डेड सीरियस होना चाहिए. Okay. क्योंकि आपको पास आउट होते ही एग्जाम देना चाहिए. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से GS के पेपर्स या पार्ट्स को जो है कॉलेज में रहते ही कवर कर सकते हैं? सर आई वुड से सर स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम द NCERTs. बट एक ये बड़ा वो हो गया है कि लोग NCERT 6 से 12 तक सारी पढ़ना शुरू हो गए हैं. सो आई वुड रादर से सर रिफ्रेन फ्रॉम दैट, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है बहुत डायनामिक और काफी मतलब पहले से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है. सो NCERT सर अनलेस एंड अनटिल कि आपने स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो तब जाके आप 6 से शुरू करिए. वरना कुछ NCERTs हैं सर, वो बुक लिस्ट अवेलेबल है किसी को भी सीरियस अगर तैयारी करनी है. बट सब्जेक्ट वाइज मैं बोलूँगा सर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत कोर ऑफ द मतलब एग्जाम बनाता है. तो उसकी एक ही बुक है सर, M. लक्ष्मीकांत, विच इज वेरी फेमस. अनलेस एंड अनटिल किसी का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो देन वो एक अलग सिस्टम बन जाएगा, अलग आपको एक रेफर करनी पड़ेंगी बुक्स. बट फॉर अ जनरल स्टडी स्टूडेंट ऐसी बुक जो आपको कवर टू कवर कर दे आपका सिलेबस इज अ वेरी बिग थिंग. एंड जब आप बाहर आते हैं, जब आपके पास एक चीज होती है कि मैंने ये पढ़ा है, तो ऑलवेज हेल्पफुल. एंड ऑल्सो सर नॉट ओनली दिस, हिस्ट्री की मतलब स्पेक्ट्रम होती है या इकोनॉमिक्स स्पेक्ट्रम सीरीज की किताब है. राइट. तो सर ऐसे कुछ जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं जो 4th ईयर में आई थिंक सो वन शुड स्टडी. एंड सर इट्स नॉट अ बिग डील. आजकल अगर मैं मान लीजिए नहीं भी समझ आ रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं. तो आई वुड से दैट इज हाउ वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. वेरी राइट. ऑन दी सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज जो आपने मैं क्वेश्चन मिस कर गया था ऑप्शनल के ऊपर. ऑप्शनल, यस. राइट. तो सर ऑप्शनल ऐसी चीज है, ऑप्शनल इज लाइक आपका इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, फॉर एटलीस्ट 2-3 years if not more. What was your optional? So my option was political science and IR, international relations. Okay. So one should be very and very careful while selecting the subject, क्योंकि उसमें आपको in depth knowledge चाहिए, because they expect you कि you are an expert in that subject, the board or the examination body. So मैं ये बोलूँगा सर, if not anything else 4th year में आप basics को go through करिए. जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बोली हैं ये कि आप बिल्कुल अगर आपको लग रहा है नहीं ये बड़ा हैफाजार्ड है कि कुछ सिस्टमैटिक नहीं हो पा रहा है, आई वुड से सर एटलीस्ट ऑप्शनल को शुरू करें. क्योंकि ऑप्शनल आज अब मैं इंजीनियरिंग करके पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, अब वो मैं 2nd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता या कॉलेज पास आउट होकर पढ़ता, बात बराबर ही थी. मेरा कोई बेस नहीं था पॉलिटिकल साइंस में. सो अगर आप 4th ईयर में प्रॉपर 4 month 5 month हर ऑप्शनल का ऑन एन एवरेज 3 to 4 months का कोर्स होता है. अगर आप खुद भी पढ़ना चाहे तो प्रॉब्लली 1 month और ऐड कर लीजिए. तो अगर आप एक सेमेस्टर ऑप्शनल को सर नोट्स बना लें, जस्ट एक बार गो थ्रू करें तो काफी हेल्प हो जाएगी. और एक काफी बड़ी आपकी मैं बोलूंगा बिग डील है ऑप्शनल को कवर करना अच्छे से. क्योंकि फिर आप जब जाते हैं बाहर वापस कॉलेज से पास आउट होकर तो फिर GSE इतना ज्यादा बर्डन होता है कि ऑप्शनल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो दैट इज आल्सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. तो ये जो सपोज ऑप्शनल्स लेते हैं हम, GS लेते हैं हम, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग आंसर राइटिंग पे ध्यान देते हैं. तो व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड हाउ दे हेल्प अस एज वेल एज कि जैसे अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, स्पेशली यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और भी रिसोर्सेज होंगे, डेफिनेटली देयर आर फोरम्स एंड स्टफ लाइक दैट जहाँ पे जनता डिस्कस करती है. तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज? So sir, I would like to break my answer in 2 parts. Sir, first हो गया कि कोचिंग का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है. So sir, कोचिंग इज लाइक अ कैटलिस्ट. इट्स लाइक कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है. एंड ऑल्सो मेरे को पर्सनली कोचिंग से ये फायदा मिला था कि आई जस्ट वांटेड टू सी कि कंपटीशन क्या है. सिटिंग इन ऐसे वीडियो आपको हमेशा एक फियर ऑफ मिसिंग आउट था मेरे को, कि ऐसा ना हो कि मैं यहीं बस पढ़ते रहूं एंड वहां पे पता नहीं क्या हो रहा होगा. जब देश दुनिया का लेवल क्या है. तो एक साइकोलॉजिकली मेरे को वो बैटल में जाना था
सो दैट हेल्प मी इन दैट वे, क्योंकि मेरे को पता लगा कि इवन अगर कोई आईआईटी से भी आ रहा है तो आई कैन कम्पीट। एक सर वो काफी एक साइकोलॉजिकली हेल्प करता है आपको इतने मतलब बड़े एग्जाम में, एक तो ये। दूसरा सर अगर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में काम करें, आजकल सर एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया कि कोई भी कोचिंग नोट्स, कोई भी कोचिंग सफाइस नहीं कर रही है। ओके, सो वन थिंग इज फॉर श्योर सर, कोचिंग सिर्फ एक बेस दे सकती है, सिर्फ एक फाउंडेशन दे सकती है। इफ यू थिंक कि अगर उनके नोट्स पढ़ के आप एग्जाम क्लियर करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वन नीड्स टू सर वर्क वेरी वेरी हार्ड। उसके बाद इट हैज टू बी, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर कि अगर कोचिंग ने मेरे को एक फाउंडेशन बनाई है, बिल्डिंग आपको ही खड़ी करनी है उसके ऊपर। ये हो गया कोचिंग, जो फॉर्मल कोचिंग है, जो डेली में जा रहे हैं वो। सर दूसरी होगी ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो सर वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि आजकल सर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप YouTube पे जाएंगे, अब मेरी तो ऐसी फीड बन गई कि मेरी फीड में सिर्फ यूपीएससी के चैनल्स ही चल रहे हैं, कुछ ना कुछ, या केएस के या कुछ। सो इट्स लाइक हर किसी का अपना एक इनसाइट है एग्जाम को लेके। नॉट दैट कि वो डेलिबरेटली कोई किसी को मिसगाइड कर रहा है, बट इट्स लाइक कि हर एक के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एंड वो शेयर कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो सिस्टमैटिक नहीं रहता और फिर आप सब कुछ मिक्सअप कर देते हो। तो सर मैं बोलूँगा, अगर आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्स कुछ फ्री यूज कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप बड़ा फोकस्ड होके एक या दो चैनल्स को रेफर करिए, ताकि एटलीस्ट वो सिस्टम रहे। आप एक ही बंदे को फॉलो करिए और अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए, रादर देन आप 5 सोर्सेज लाएं, 5 बुक्स पढ़ें। मच बेटर कि आप एक बुक पढ़े और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसको ही फॉलो करें। This is I would like to. And how answer writings पे भी लोग जो है काफी परेशान रहते हैं कि हमें आंसर्स लिखने नहीं आते हैं, या हमको आता है लेकिन हम पुट अप नहीं कर पाते हैं इंफॉर्मेशन इन दिस एंड दैट। तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसको कैसे अच्छी मतलब चैनलाइज करते हैं? सर सो इसमें जो मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस से पता लगा है, प्रॉब्लम ये हो गया कि सर एक मार्केट में एक फियर अब प्रॉब्लली फ्लोट किया जा रहा है, या फिर सर प्रॉब्लम ये है जिस एग्जाम में 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, या इस साल शायद 13 लाख फॉर्म्स भरे थे, उसमें सर सीरियस बहुत कम लोग होंगे। सीरियस हार्डली 50,000 होंगे और पास अल्टीमेटली 1000 या 800 लोग जो भी हैं पास होंगे। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर प्रीलिम्स में सिर्फ 10,000 लोग पास हो रहे हैं, तो 9,90,000 आर गोइंग टू गो बैक। तो एक व्हाइट नॉइज इतनी ज्यादा हो गई है कि जो एक्चुअली कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती नहीं है। और ये फियर जो है आंसर राइटिंग का या प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा फियर होता है हमारे, सबसे ज्यादा फियर प्रीलिम्स का रहता है एग्जाम में। बिल्कुल। तो राइट, तो आंसर राइटिंग को सर मैं बोलूंगा जितना सिंपल रख सकते हैं, ये आप प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करिए। फॉर एग्जांपल मेरा ऐसे मैंने एक अपने यूपीएससी वाले अटेम्प्ट में काफी स्क्रू अप करा है, जो अब मेरे को रियलाइज हो रहा है पीछे देख के मैं क्या गड़बड़ करके ओवर कॉम्प्लिकेट करके। जैसे कुछ सर काफी फंडामेंटल चीजें जो बड़ा इजी है वो रियलाइज करना कि पॉइंट्स में लिखना है। आपको एक क्वेश्चन को अगर 2-3 सब पार्ट्स को ब्रेक डाउन करिए, वो एक जब बच्चा उसमें जाएगा पढ़ाई में तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग टू नो। प्रॉब्लम ये है कि हम उन फंडामेंटल्स को भूल के आगे पीछे भागने लग जाते हैं कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं लोग इसलिए सिलेक्ट हो रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा कुछ ब्राउनी पॉइंट है, वो ब्राउनी पॉइंट सर ऑटोमेटिकली आएंगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, सोर्सेज को रेफर करेंगे, वो हमें मिलते हैं फैक्ट्स और डेटा। इंस्टेड ऑफ हम आंसर राइटिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट करें, आई वुड रादर से कि आप शुरू करिए। और मेरे ख्याल से बेस्ट वे इसकी सर मेरे को जो समझ आ रहा है वो है कि आप जैसे विजन आईएएस से काफी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फोरम आईएएस लाइक आर दी बिग थिंग्स वहाँ पे ORN। सो उनकी वेबसाइट पे जाइए और गूगल पे लिखिए कि टॉपर कॉपीज या टेस्ट कॉपीज ऑफ विजन। तो वो सर जितने भी टॉपर्स रहे, जैसे इस बार मैडम रही हैं इशिता किशोर, यहाँ जितनी भी, उन सबकी टॉपर कॉपीज अवेलेबल है। आप उनको देखिए वो कैसे लिख रहे हैं। एंड ये ध्यान रखिएगा कि अगर उन्होंने मेंस एग्जाम्पल 22 सितंबर में दिया तो वो ध्यान रखिएगा कॉपीज जो हैं वो उसी मेंस के आसपास की, जुलाई 22, अगस्त 22, क्योंकि दैट वाज एक्चुअली जो उन्होंने एग्जाम में लिखा जाके, दैट वाज द राइटिंग। तो अगर आप राइटिंग करके वही क्वेश्चन जो वो लिख रहे हैं आप भी लिखे बिना देखिए, फिर आप कंपेयर करिए कि क्या मैंने वैसे ही उसको ब्रेक डाउन किया था, क्या मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे, क्या मैंने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर बात की थी, मैं कुछ और लग गया हूँ। दिस इज लाइक द बेस्ट पॉसिबल वे सर। एक तो ये है, दूसरा है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। बट मैं टेस्ट सीरीज की सर जो प्रॉब्लम ये है, जो चेकिंग हो रही है वो कोई टीचर नहीं कर रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो वही कर रहा है जो प्रोबेबली मेंस दिया हुआ है किसी ने यूपीएससी का, या इंटरव्यू आउट है। नॉट दैट कि दे आर नॉट केपेबल, डेफिनेटली दे आर केपेबल, बट इट्स कि सर उनके लिए वो मॉनिटरी थिंग है एंड दे लाइक कि उनको बहुत सारी टेस्ट कॉपी चेक करनी है। तो आप उन पे कंप्लीट लाई मत करिए, ठीक है, कुछ उनसे आप लिए डायरेक्शंस, बट द बेस्ट जो आप रिव्यू दे सकते हैं वो आप अपने आप को खुद ही दे सकते हैं। एंड सर जो थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि आंसर राइटिंग में सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन करेक्ट होना। कॉलेज में सर फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूँ, तो हमें ये बहुत ज्यादा एक हैबिट होती है कि क्वेश्चन देखा और सॉल्व करने लगे और आंसर निकाल के छोड़ दिया।
तो पहला तो ये फ्रेमवर्क कि आप ये प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि आप एक अल्टीमेटली सर ये एग्जाम जो है सोशल साइंसेस का डिसाइड कि इसमें इंजीनियर्स एग्जाम पास कर रहे हैं तो एक डिफरेंट डिबेट है, बट अल्टीमेटली आपकी आंसर राइटिंग ही आपको विनर बनाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो प्रोफेसर पढ़ रहा है, अगर तुम उसको इतना हैफेजार्ड दोगे वो कुछ नहीं मार्क्स देगा। तो आपको प्रॉपर एक इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। उसके अंदर सर ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्टार्टिंग में मेरा 1-2 साल तो ऐसे ही, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को बड़ा इशू हो रहा था कि क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल में लेते हैं कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो यूजुअली सर जो हैबिट होती है कॉलेज से बाहर आके कि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 समझाने लग जाते हैं, उसमें ऐसा हुआ, इधर ये सेंटर ऑफ रिवोल्ट था, खूब डेटा डालते हैं उसमें। एग्जैक्ट वो सब डाल देते हैं सर। वो 10 से 1 नंबर देंगे, 10 में से 2 नंबर है, बट जो आंसर राइटिंग है वो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है कि हुआ क्या। तो वो ये पूछ रहा है कि सिपाही म्यूटिनी थी, लोग आए घर से बाहर, ये वो काफी चीजें उसमें सिग्निफिकेंस में, पॉलिटिकली ये हुआ या इकोनॉमिकली फर्स्ट टाइम हमें रियलाइज हुआ क्या हो रहा है। सो वो चीज अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, एंड दैट कम्स विद टाइम, दैट कम्स विद प्रैक्टिस सर। रादर देन लोग जो मार्केट में भाग रहे हैं टेस्ट सीरीज के पीछे, गाइडेंस की कोई व्हाट इज लाइक द थिंग कि कैसे पास करना है, आप प्लीज बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और आप इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दीजिए। एंड सर जो थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं, जो इन बेसिक्स भी गो थ्रू कर चुके हैं, जो मेंस जिनका पास आ रहा है, तो उनको सर मैं ये बोलूंगा कि जब 1 महीना बच जाए या 2 महीने बच जाए एग्जाम में, रादर देन कि वो फुल लेंथ टेस्ट दें, 1-2 देते रहे बीच में, तो दे शुड डू इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके उनको स्क्रिबल डाउन करें कि फॉर एग्जांपल कि ये क्वेश्चन है XYZ, तो आप पूरा मत लिखिए क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप बस लिखिए कि माइंड मैपिंग करिए कि इंट्रो में पेन से बस इंट्रो में लिखिए 2 वर्ड लिख दिए कि मैं ये लिखता, बॉडी में मैं ये 3 सब हेडिंग्स लिखता, इसके अंदर XYZ पॉइंट लिखता, एंड दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो लास्ट थिंग जो सर आंसर राइटिंग में है वो है कि आपको यू हैव टू राइट वेरी फास्ट। So it's like कि 150 वर्ड्स के एक 10 मार्कर आते हैं और 250 वर्ड्स के 15 मार्कर आते हैं 3 पेजेस में, और 10 मार्कर मतलब 2 पेजेस पे। जो 10 पेजेस होते हैं ऑन एन एवरेज वी हैव टू राइट इन 7 मिनट्स, जो 10 मार्कर होते हैं, और जो 15 मार्कर है उसको 10 मिनट्स। तो उसके लिए सर काफी इंटेंस प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए। राइट। तो वो हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं है। आप 1 महीना लिखिए तो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट प्लीज फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वरना एग्जाम पास नहीं होगा। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम देते हैं, मेंस के लिए कितना टाइम देते हैं, और दिन में कितना टाइम देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जब जा रहे हैं तब कैसे टाइम ब्रेकअप करते हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा समझा सर। तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ पहले कोचिंग के साथ, क्योंकि सबसे जो नया बच्चा आएगा वो कोचिंग में लेगा। तो सर मेरी जो रूटीन होती थी दैट वाज लाइक कि कोचिंग के साथ मैंने ब्रेक डाउन किया था डे को कि 10 से 11 घंटे पढ़ना है, और कोचिंग को डाल के 2.5 आवर्स की क्लास होती थी, तो वो 13.5 पहुंचता था। एंड सर अगर इफ पीपल आर थिंकिंग कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे काफी सारा ये आ रहा है कि नहीं 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए। सर मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 6-8 घंटे से काम नहीं होने वाला, नहीं हो सकता सर, क्योंकि ऑप्शनल भी पढ़ना है आपको 5 घंटे दिन में, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, पता ही नहीं है अभी। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है सर। आप जिनके साथ कम्पीट कर रहे हो, एक तो वो क्रीम है कंट्री की। आई रिमेंबर में विजन में टेस्ट सीरीज लिखता था, तो वहाँ पे एक चीज ये बड़ी थी जो IIT से होते हैं, IIM से होते हैं, दे यूज्ड टू वेयर अपने कॉलेज की टी-शर्ट एंड ऑल। तो मेरे राइट पे सर एक बंदा बैठता था, ही वाज फ्रॉम IIM अहमदाबाद, लेफ्ट पे बैठता था फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कम्पीट विद द बेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू डू योर बेस्ट। सो एक चीज तो सर ये समझने की जरूरत है, आपको काफी हार्ड वर्क करना, 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। स्टार्टिंग की मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर तो नहीं। कोचिंग में सर गए, उसके साथ आप बेस्ट चीज़ से टाइम टेबल बनाना। जैसे मेरा होता था कि अगर मेरी क्लास थी 11 से 1:30, तो मेरा होता था कि सुबह 7 o'clock से लेके पहले मैं 10 o'clock तक एक सेशन, 10 से फिर 11 बजे क्लास थी, तो स्टूडेंट्स को डेली था, तो मैं थोड़ा दूर रहता था, तो मैं न्यूज़पेपर कैरी करता था, तो रास्ते में पढ़ते हुए जाता था, तो वो टाइम सेव होता था। फिर 1:30 वापस आना, खाना वगैरह के 2:30 वापस पढ़ना 6 तक, फिर 7:30 to 10 एंड देन 10:30 to 12 समथिंग लाइक दैट, वो एग्जैक्ट याद नहीं उस टाइम, बट मेरा जो पूरा डाल के वो 12 to 13 आवर्स बनता था। एंड मैं ये बोलूँगा सर ये चीज़ करनी पड़ेगी, और कोई सलूशन नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई नोट्स नहीं है स्पेशल। प्रीलिम्स और मेंस का ब्रेकअप सर, सो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर वो कोचिंग कर रहा है तो वो उसको फॉलो करें। बट सर कोचिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोचिंग वाले बस पढ़ा रहे हैं, कि जैसे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेंस देने से पहले आपके मेंस के नोट्स तैयार होने चाहिए यूजुअली।
जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, बाकी नहीं हुए फिर तो करेंगे ही बाद में। तो जब आप कोचिंग शुरू कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि 1 या 2 महीने जो है आप प्योरली कोचिंग को फॉलो करिए और जो वो पढ़ा रहे हैं वो प्रीलिम मेंस इंटीग्रेटेड चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट विद टाइम आपको ये करना है, प्रीलिम्स मेंस में मैं ऑप्शनल की ज़्यादा बात करूँगा कि ट्राई करिए कि यूजुअली जून में सर हम पास आउट होकर कोचिंग करने जा रहे हैं, तो जून से मान लीजिए अक्टूबर नवंबर तक आपको ऑप्शनल कोचिंग में खत्म हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप साथ साथ में, हाँ ये चीज़ है कि ऑप्शनल की प्लीज साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो टॉपर्स के नोट्स प्लीज, कुछ हैं टॉपर जैसे उत्कर्ष द्विवेदी हैं या फिर और भी काफ़ी सारे टॉपर्स हैं, उनकी प्लीज आप नोट्स देखें कि वो कैसे बना रहे थे। तो नोट्स बड़े प्रॉपर होने चाहिए, बॉडी फॉर्मेट आंसर फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आगे ब्रेकअप की बात सर, सिंस अब जो प्रीलिम्स है दैट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट, सो मैं बोलूँगा सर पहले यूजुअली लोग 3 मंथ्स का टाइमलाइन मांगते थे फर्स्ट अटेम्प्ट तक के लिए कि अगर ये जून एग्जाम है तो आप फेब में तैयारी शुरू करिए। मैं बोलूँगा कि सर आप भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्लीज आप जनवरी से सर शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको बेसिक बुक्स तो पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। वो आप मान लीजिए आप फर्स्ट रीडिंग में 2.5 मंथ्स ले लेंगे सिंस आपका पहला अटेम्प्ट है, उसके बाद रिवाइज भी करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए सर टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा। सो टेस्ट सीरीज इज लाइक कि मॉक टेस्ट आप घर पे ले आइए या फिर एक आप मॉक टेस्ट, मैं तो ये रेफर करूँ मतलब एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज घर पे लाइए, क्योंकि प्रीलिम्स आपकी अपनी असेसमेंट है। आपको अल्टीमेटली आजकल कट ऑफ भी बहुत कम जा रहा है, 88 लास्टिंग गया था, इस बार एक्सपेक्टेड और नीचे 80s में आने का है। सो टेस्ट लाइए, प्रैक्टिस करिए बहुत सारी, ये पूरे जैन से बोल रहा हूँ जून तक या मई तक, जैसे नेक्स्ट ईयर शायद जून में है या मई में है प्रीलिम्स, तो आप प्लीज जैन से तैयारी शुरू करिए और वो प्रॉपर करिए बिकॉज एग्जाम टफ आएगा। देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस सर कि एग्जाम टफ आएगा और ये हेल्प करता है एग्जामिनेशन सेंटर में जाके, क्योंकि फिर आप उस ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं कि नहीं जो मैंने पढ़ा वो आएगा, वो नहीं आएगा और वो कभी भी नहीं आ रहा। इसलिए प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलूंगा सर इट इज मोर अबाउट एप्टीट्यूड नाउ। अगर आप इस साल का एग्जामिनेशन गो थ्रू करेंगे जो प्रीलिम्स हुआ, इट वाज मतलब इट इज सेड टू बी लाइक द हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ द प्रीलिम्स को हुआ। सो उसके लिए आपको एप्टीट्यूड, वाइड नॉलेज, वाइड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा जो मेरी कि आपको सिंस 4 ऑप्शन से सामने हमारे, सो अल्टीमेटली आपके सामने ही आंसर है डिस्पाइट की एग्जाम जो मर्जी आ जाए। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप एग्जामिनर के माइंड में जाओ, आप अंडरस्टैंड करो जब वो ये क्वेश्चन बना रहा था तो उसको अगर किसी क्वेश्चन को इनकरेक्ट करना होता तो वो क्या करता, क्योंकि उसको 3 को करेक्ट करना ही है। So this is also one way of thinking prelims में कि आप you get into the shoes of the examiner, that is and you start thinking like him. Prelims के लिए सर मैं ये एडवाइस करूँगा, मॉक टेस्ट लगाइए, थोड़ी ज़्यादा वाइड रीडिंग करिए एंड स्टैटिक इज द किंग सर। अल्टीमेटली एक मार्केट में ये भी है कि करंट अफेयर्स के लिए लोग पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट बट सर स्टैटिक में आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस आप स्टैटिक में, क्योंकि हम देखते हैं एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर ये काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, मेरे लिए भी पर्सनली हैं, तो हम यूजुअली इनसे भागते हैं दूर। बट सर इनसे ही क्वेश्चन आजकल 10-10, 12-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो उनको बिना करे आप बहुत मुश्किल है कि क्लियर करें। सो स्टैटिक पे फोकस करिए, स्टैटिक पे कमांड बनाइए कि अगर बेसिक बुक से क्वेश्चन आ गया वो करेक्ट होना ही चाहिए। अगर इनकरेक्ट हो गया या फिल इन मिस्टेक कर रहे हो तो देन देयर इज लाइक नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट डेफिनेटली। तो मेंस के लिए सर जो आप ब्रेकअप कह रहे थे, मैं बोलूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए आप प्लीज दिसंबर तक मेंस के नोट्स बनाइए। और ऑल्सो क्योंकि थोड़ा जब आप प्रीलिम्स और ऑप्शनल्स के लिए पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग का काफी बर्डन होता है, तो एक कुछ टॉपिक्स होते हैं मेंस के जो एक्सक्लूसिव होते हैं, जैसे GS3 में सिक्योरिटी एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है, या GS4 एथिक्स है वो पूरा ही एक्सक्लूसिव एक पेपर है। तो आप वैसे कोई सब्जेक्ट जो है आप प्रीलिम्स से पहले ही तैयार कर लीजिए, वो बहुत सब्जेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह टॉपिक्स हैं, हो जाएंगे। आपके लेवल पे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, नोट्स बना के रख लीजिए। अगर आप याद नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो प्रीलिम्स तक वैसे भी आपको भूल गए होंगे, आपको याद करना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज सर कि आप मेंस के लिए नोट मेकिंग करिए, और नोट मेकिंग के लिए मैं बोलूंगा टॉपर्स के नोट्स देखिए, कुछ आपको वहां पे चेरी पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप उठाइए, यही कर रहे हैं सारे। अक्यूमुलेशन ऑफ डेटा एट वन प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिनका सर अटेम्प्ट हो गया, यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत रेयरली कोई पास हो रहा है, एंड तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें दिख रहे हैं दे आर दोस पीपल जिन्होंने पूरी कॉलेज लाइफ पढ़ाई करी है, करी है, कोई जादू नहीं हुआ कि एक दिन उठ के गए हैं, दे लाइक
बिल्कुल So, वो तो है। आप पेशेंस सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था, इफ यू हैव मोर टू सर, से यू फर्स्ट से, उसके बाद मैं बोलता तो हूँ। मेंस के लिए सर जो हम लेते हैं कि आप प्रीलिम्स हो गया, तो फिर तो हम्म। सर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने एग्जाम है 3 महीने बाद, आपको हम्म। आंसर राइटिंग टेस्ट देना, दैट इज ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब प्रीलिम्स फेल होता है, तो देन आप यू आर आउट ऑफ द साइकिल फॉर 1 ईयर, तो 1 साल तक आपके पास कुछ नहीं है। सो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि सर आप प्रीलिम्स को भूल जाओ, डिस्पाइट आपका प्रीलिम्स कैसा गया, आप 4 5 6 महीने सिर्फ मेंस की तैयारी करिए। आप मेंस को सॉलिड करिए, क्योंकि सर अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो सिर्फ एक एग्जाम जो पास करना है, क्वालिफाइंग, बट जो मेंस है सर वही आपकी रैंक बनाएगा, वही आपको फाइनल लिस्ट में लाएगा। तो और वो सर खासकर इंजीनियर्स के लिए मैं बोलूंगा, हमें काफी इशू रहता है आंसर राइटिंग में, तो प्लीज उस पर थोड़ा फोकस करिए। एंड अगर कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कुछ सर फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे एक IS बाबा का TLP है, या फिर इनसाइट्स का वो एक आंसर राइटिंग है, सो यू कैन गो ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, आंसर लिखिए, बाकी बच्चे पीयर रिव्यू कर देते हैं, आप उनका करिए, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ थिंग। बट मेंस पे फोकस करेंगे कि मेंस इज द थिंग। प्रीलिम्स अगर आप पास कर देंगे तो कोई पॉइंट नहीं है अगर आप मेंस की तैयारी नहीं है। तो सही तो है। तो इसी में जैसे बातों में आया, बात बिल्कुल सही है, जैसे आजकल हमारे बच्चों का और खास करके कोविड के साथ साथ जो है थोड़ा सा ये इशू बन जाता है कि पेशेंस का इशू बन जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बहुत सारे इश्यूज बनते हैं जो मेंटल ट्रॉमास पे जाते हैं। एंड ऑब्वियसली यू पीपल आर एट दैट एज ग्रुप जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा होती भी, बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग फॉर सो मेनी थिंग्स और आपका करियर अभी भी सेटल नहीं है, तो डेफिनेटली एक प्रेशर रहता है। तो especially this question is for students who like appeared for prelims and could not clear, या mains दिया expecting but then mains clear नहीं हुआ, again they have to go back, है ना, वो हो सकता है इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या कुछ लोग जो है मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बस प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो ऐसे सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हैं, बिकॉज़ यू आल्सो हैव टैकल्ड दैट सिचुएशन। राइट सर। सो फर्स्ट जो मैं इसके लिए चीज बोलूंगा वो ये है कि सर एक तो प्रॉब्लम सर जो है ये स्टूडेंट्स में इसलिए आ रही है क्योंकि इंटरनेट पे ना, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया जा रहा है एग्जाम्स को। नो आजकल वीडियोस आती है, यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं कि IAS ऑफिसर यहाँ कोई जा रहा है तो बस साथ में बहुत सारा म्यूजिक आता है, इंस्टाग्राम वाला इधर उधर वाला, है ना। तो सर एक अब ठीक है, वो उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी अनफॉर्चुनेट है और दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी में। एक तो ये हो गया सर। जो स्टूडेंट साइड पे मैं बोलूंगा सर कि फर्स्ट थिंग इज कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि एग्जाम इज नॉट इजी, कंपटीशन है। डोंट लिव इन अ ड्रीमी वर्ल्ड कि नहीं मैं तो दूंगा और हो ही जाएगा। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक। इट इज गुड टू बी सर ऑप्टिमिस्ट, बट इट वुड बी फुलिश कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि एग्जाम तो हो ही रहा है, मैं ही बन रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक। आप पॉजिटिव रहिए, आप सोचिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, एग्जाम होगा, बट अल्टीमेटली सर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बियॉन्ड द पॉइंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फर्स्ट थिंग इज दिस। बट सर मैं ये बोलूंगा, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। बट अगर मैं एज अ स्टूडेंट अभी भी बोलूंगा सर, आपको यू हैव टू एक्सेप्ट कि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हो, कुछ कमी रही होगी, कुछ ना कुछ रहा होगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अनलेस कि आप 1-2 मार्क्स से रह रहे हो, फिर तो थोड़ा लक ही आपके साथ है। बट अगर आप 10, 15, 20 से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है ना। आप रोक दीजिए, 10 दिन दुखी हुई है, पढ़ाई मत करिए, दैट इज नॉट एन इशू। बट दी सर मैं चीजूंगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप प्लीज वापस जाके बुक्स उठाने से पहले एक नोटबुक लीजिए और उस पर लिखिए कि इश्यूज क्या हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल KS में सर दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई गॉट थ्रू, बट UPSC में मैं 3 बार दे चुका हूँ, आई डिड नॉट। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो आई यूज्ड टू राइट डाउन कि क्या इश्यूज हुए हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना, क्योंकि वो मेरे को ही पता है, कोई नहीं बता पाएगा कि मैंने मेहनत कम करी। प्रॉब्लली मैंने मेहनत 12 घंटे पढ़ा, लेकिन सही तरीके से नहीं करी, एक चीज तो ये। दूसरा सर मैं बोलूंगा कि पेशेंस जो है, एक तो विद टाइम विद एज आएगी। 21, 20, हाँ मतलब बड़ा मुश्किल है एक्सपेक्ट करना किसी बच्चे से कि वो ऑब्वियसली। सो मैं ये बोलूंगा कि सर वो चीज जो है, मे बी थोड़ी एक्सेप्टेंस, एंड दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड। आप थोड़ा सा डटे रहिए, आप 2 अटेम्प्ट दीजिए, 3 अटेम्प्ट दीजिए, बट ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद यू हैव टू गो फॉर अ प्लान बी। आई नो बहुत सारे वो मूवीज में एंड आजकल यूट्यूब पे आ रहा है, नहीं जी बस वो नेपोलियन की तरह वो स्टोरीज सुनाई जाती हैं कि बस आप शिप को आग लगा दीजिए एंड देन गो फॉर द वॉर। बट सर रियल लाइफ में नॉट द केस, क्योंकि आई कैन टेल यू सिंस मेरे कजन्स एंड वेरी आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो दिल्ली में,
डिस्पाइट गिविंग 6 अटेम्प्ट्स, उनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, दे आर मतलब दे हैव जस्ट स्टार्टेड इन देयर 30s एंड उनका कुछ नहीं हुआ, कोई जॉब नहीं है। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको एक प्लान भी रखना है, 2 या 3 अटेम्प्ट्स के, उसको एग्जीक्यूट करिए एंड देन वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, वो प्लान भी आप अभी से सोच लीजिए कॉलेज में। जैसे मेरे को पता था मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है या मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो अगर आज भी मेरे को कोई बोलेगा तो मैं 6 महीने में कोडिंग सीख के एक डिसेंट जॉब सिक्योर कर सकता हूँ। प्रॉब्लली वो गैप आएगा, वो एक इशू अलग है, बट वो स्किल में को या एप्टीट्यूड मैथ से कोई जॉब ले सकता हूँ। ट्रू चीज है ना, वैसे ही आप भी प्लीज उस चीज को कॉलेज में ही डिस्कवर करिए कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप अपने एप्टीट्यूड पे पहले ही काम कर लीजिए कि बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक जॉब मिले। क्योंकि सर अल्टीमेटली विद टाइम ये आता है कि हमारे घर वाले फैमिली हमें सपोर्ट करेंगे, बट देन सर ये एग्जाम ऐसा है कि एक अटेम्प्ट में ही 1 साल जा रहा है, तो यू नो एक सोसाइटी में भी वो बिल्डअप हो जाता है, यार क्या कर रहे हो, 3-4 साल हो गए, घर पे 5 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो IT सेक्टर में आके हैं, दे मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। तो एक दूसरा सर मैं बोलूंगा, जो नया बच्चा आ रहा है वो प्लीज सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहे। तो मैंने भी पर्सनली जब मैंने तैयारी शुरू की थी 1.5 ईयर में बहुत कम यूज कर रहा था। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मतलब समझ गया था कि क्या हो रहा है, तो देन आई केम बैक ऑन सोशल मीडिया। तो यही बोलूंगा, एंड सर परसिवेरेंट तो होना पड़ेगा, सिंस दिस इज कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जैसे कि do you talk to somebody या you talk to yourself या कोई शेड्यूल बनाते हैं, क्या करते हैं so that मेंटेन, मतलब अपना जो कंपोजर है उसको मेंटेन कर सकें? सो सर मैं अपना बता देता हूँ मैं क्या करता था। तो जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी उस टाइम एक थोड़ा बहुत जोश भी होता है, तो मैंने एक नोटबुक ली थी। उस नोटबुक, छोटी सी नोटबुक थी, अभी मेरे पास है। तो उस डायरी के लास्ट पेज पे मैंने जो जो अभी तक अचीव किया था वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एक अचीवमेंट थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्विज में फर्स्ट आया था। हाँ बिल्कुल, तिवारी सर वाला क्विज। बिल्कुल। तो बीटेक में मेरा फर्स्ट रैंक था, या फिर मैं उसमें ये किया, या फिर मैंने स्पोर्ट्स में क्रिकेट में ये खेला, या मैंने ये जॉब ये वाली सिक्योर करी थी, मैंने छोड़ी है कुछ 3। सो उस चीज फर्स्ट तो मैं बोलूंगा, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया उसको प्लीज अपने आप को रिमाइंड कराएं कि यू आर केपेबल, तभी वो सब हुआ था। वो कोई ऐसे लक नहीं था कि इतनी सब चीजें होगी। एक ही है। दूसरा मैं बोलूंगा सर, ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मी एंड माय फादर हैव दिस इक्वेशन की ही नोज कि जब मैं थोड़ा हीट फील कर रहा हूँ या जो प्रेशर फील कर रहा हूँ, तो ही विल टॉक मी आउट ऑफ इट एंड देन ही विल टेल मी कि क्या ही हो जाएगा, एग्जाम ही है। जो सच भी है सर, अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ बियॉन्ड पॉइंट एग्जाम ही है ना, एक ही है। और थर्ड सर मैं बोलूँगा कि मैं अपने आप से काफ़ी एक इंटरनली माइंड में सोचते रहता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या करना है, कि डू आई नीड टू गिव अनदर अटेम्प्ट, या फिर जैसे ये बैंक वाला ही डिसीजन था। तो एक प्रोफेसर है हमारे कॉलेज में, स्वास्तिक सर। So I remember I met him ये prelims के fiasco के बाद, and then he was like, why are you not giving it form भरा ये वो। My dad was also pushing me, which I think so was the right thing। उस टाइम का जोश होता है स्टार्टिंग में कि नहीं ऐसा है, हमें सब पता है, बट प्लीज टॉक टू समवन जो आपको वाइज लगते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आप में फेथ दिखाते हैं। क्योंकि सर अल्टीमेटली वही आपको वापस से पुश करेंगे, वही आपकी गाड़ी वापस से स्टार्ट करेंगे। तो परसिवियरेंस का तो मैं यही बोलूंगा सर, एक तो अपने आप को प्लीज पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत टॉक्सिक है सर। सो इट्स लाइक दैट कि आप प्लीज उन लोगों से बात करिए जो हु रियली वांट द बेस्ट ऑफ यू। एंड ऑल्सो सर थोड़ा वाइज रहिए, क्योंकि अब आप भी अगर आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो कि व्हाट इज योर वर्थ, व्हाट यू नीड टू डू। एंड यही है सर, मैं तो बोलूंगा कि आप बस डिसीजन मेकिंग अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए। एंड इफ पॉसिबल सर, मैं नहीं कर पाता, मैंने ट्राई किया था, मेडिटेशन इज समथिंग व्हिच आई डेफिनेटली एंड आई नो पीपल हु आर लाइक वेरी who have very high willpower, and meditation is also one thing। डेफिनेटली वो चीज तो है, वो चीज के बारे में मैं भी काफी बार बात करता रहता हूँ क्लास वगैरह में एंड सो ऑन। अच्छा, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर may not be very good about SMBT, let's not talk about it, ठीक है। What are the good things about SMBT? क्योंकि SMBT आपको एक certain type of platform provide करता है, जिसके कारण से आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, या बहुत टाइम प्रोवाइड करता है, शायद थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। अभी तो मुझे उतना पता नहीं, क्योंकि वी हैव बीन कोविड है, तो उसके बाद बच्चे उस तरीके से अभी भी मेरे ख्याल से डेवलप नहीं हो पाते, बट बिफोर हैंड आई हैव सीन कि लोगों की अच्छी दोस्तियां होती हैं, अच्छे ग्रुप्स होते हैं, लोग प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन SMBT एंड हाउ SMBT प्लेड अ गुड और बिग रोल इन योर अचीवमेंट?
So sir, the first thing is कि I remember कि when I came to SMBDU, I was in another college पहले, so I met Sumit sir, Sumit Gupta sir, right? So he introduced me to the faculty कि ये है electronics का department. I was looking forward to join the department, and then he told me one thing. It is better to be a big fish in a pond than a small fish in an ocean. Okay. So first thing is कि सर जब आप SMBDU में this is a very big thing. I'll tell you how. क्योंकि सर जब आप एक बड़े कॉलेज में, यहाँ तो IITs में जा रहे हैं, that is a separate issue. But आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बाहर जा रहे हैं जहाँ पे एक ही बैच में 5000 लोग हैं and you just one among them, कोई फायदा नहीं है. एक आपके रिलेशंस नहीं बिल्ड हो रहे हैं, आप फैकल्टी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप और भी बहुत चीज़ों में पीछे रहेंगे. तो राइट, SMBDU में सर मैं ये चीज़ बोलूँगा, एक तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है सर, आई वुड से काफ़ी एक ऑर्गेनाइज एट द एंड ऑफ द डे, डिस्पाइट काफ़ी कमियाँ होंगी, बट मैं बोलूँगा कि जो कॉलेज लाइफ जो है सर वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है, एंड आई वुड से कि उस चीज़ में SMBDU ने काफ़ी हेल्प करा है. इफ दे हैव प्रिस्क्राइब्ड एक पैटर्न है कोई, तो दैट हैज़ बीन फॉलोड. फर्स्ट ये. सेकंड मैं बोलूँगा सर SMBDU की जो एक अच्छी चीज़ है, जो यूनिक चीज़ थी, दैट वाज कि इट वाज मोर लाइक यू हैड कल्चरल पॉकेट्स इन द यूनिवर्सिटी. सो आई रिमेंबर हमारी बैच में एक प्रिंशा थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. She was a very good student. Excellent. Logic में she was. Yes. So she was very talented. I remember, even though हमारी बात interaction हुई, तो she used to have that drawing skill. That was fascinating. So कुछ ऐसे सर कल्चरल पॉकेट्स हैं. कुछ सर मेरे को दिखे काफ़ी लोग टैलेंटेड जो सिंगिंग और वो आर्टिस्ट्री साइड पे बहुत अच्छा कर रहे थे, डिबेटिंग साइड पे बहुत अच्छा कर रहे थे. सो वन कुड एक्सप्लोर सर कि इफ यू वांटेड टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, वो तो हर जगह ही है. सो एंड ऑल्सो सर आई ऑल्सो वांट टू ऐड जो क्लब्स होते थे. सो एक क्लब था, आई रिमेंबर मेरे टाइम में, एक GSOC करके कोई गूगल समर ऑफ कोड, आई थिंक सो यही बोलते हैं. It used to be a big deal back then. And then वो क्लब सर इतना अच्छा था कंप्यूटर साइंस वालों का कि हमारे बैच में, आई रिमेंबर 5-6 बच्चों ने कर दिया था. आजकल GSOC निकालती रहती है. बिल्कुल. सो दैट इज हाउ कि वो क्लब्स ने जो हेल्प किया, प्रीटी श्योर कि मतलब दो ने जो GSOC की गाइडेंस दी होगी, दैट मस्ट हैव हेल्प्ड देम. एंड सिमिलरली मैं बोलूँगा सर कुछ क्लब्स थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जैसे हमारे कोई AI के ऊपर, या फिर मैं बोलूँगा ऑर्डिनो करके एक हमारा बोर्ड. तो ये चीज़ें सर काफ़ी मैं बोलूँगा फैसिनेटिंग थी और काफ़ी हेल्पफुल भी थी कि आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं. एंड सर अगर थर्ड मैं बोलूँगा, क्योंकि सिंस हमारी यूनिवर्सिटी इतनी मतलब नॉट साइज वाइज बट द पॉपुलेशन वाइज इतनी बड़ी नहीं है, सो आप थोड़ा बॉन्ड अच्छा कर सकते हैं सीनियर से. एक सीनियर से या जूनियर से अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में लें. तो अल्टीमेटली सर जो एक्सपीरियंस के साथ विजडम आता है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है. एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है. वो हमें उस टाइम लगता है कि हम अगर आ गए हैं, हम फर्स्ट ईयर में तो क्या करेंगे फोर्थ ईयर वाले, बट ऐसा नहीं होता. दे नो थिंग्स यू डोंट. तो एक जो बॉन्ड डेवलप होता है सर, एंड दैट्स लाइक यू कैरी इट थ्रू आउट योर लाइफ. यू अंडरस्टैंड थिंग्स. सर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं अभी जब ट्रेनिंग में था अपनी, सो यू वोंट, मेरे जो रूममेट है वो मेरे SMBDU के सीनियर है, 2016 बैच के, मयंक खजूरिया, मैकेनिकल इंजीनियर. वो पहले ONG एंड देन ही केम. सो the world is a small place, sir, and what I was thinking, I had a chat with him one night since he was my roommate. So I was telling him कि यार ONGC is a big deal. क्यों छोड़ा? फिर उन्होंने रीजन दिए, तो फिर मैंने बोला कि यार मेरे बैच में तो I don't recall anyone कि वो PSU में निकल पाया. एंड फिर हमारी बात कहीं चली, तो बाद में ये सोच रहा था कि यार अगर एक बंदा हमारे साथ बैठ के हमारा कॉलेज का ONGC में बैठा हुआ है, तो आप उनसे बात तो करो. उसके बाद उन्होंने ये एग्जाम भी क्रैक किया, दैट मींस ही नोज हाउ टू क्रैक द एग्जाम. बिल्कुल. सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में एक पार्ट सर हमारे सीनियर थे जिन्होंने वो रैंक नहीं थी शायद गेट में. मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया है. सो सर ऐसा ही है, मैं बोलूंगा ये जो बॉन्ड्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर अगर हम उनको रीच आउट करेंगे तो दे विल हेल्प अस, क्योंकि इतनी छोटी यूनिवर्सिटी है, पीपल विल हेल्प यू आउट. सो सर दीज आर सम थिंग्स मैं बोलूंगा. इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक खासियत रही है दैट दे हैव बीन वेरी गुड विद गेट. तो गेट में मेरे ख्याल से 2012 से ही जो है बच्चे PSUs ज्वाइन कर रहे हैं, एंड वो कांस्टेंट है. मतलब एक ना एक बंदा, 2-3 बंदे कभी कभार किसी साल निकलते ही हैं जो PSUs ज्वाइन करते हैं.
तो पता भी नहीं चलता है, ऐसा भी नहीं है कि सबका पता चलता है, क्योंकि गेट पे नॉर्मली किसी ने आईआईटी या आईआईएससी ज्वाइन किया तो यूजुअली पता चलता है, पीएससी का मतलब पीएससी उसका उतना नहीं पता चलता है, या फिर वो बच्चे थोड़े से इस तरीके से रहते हैं, बट वो ट्रेडिशन है। बट मेरे ख्याल से अब वो ब्रेक हो रहा है, बिकॉज मेरे ख्याल से सीनियर्स और जूनियर्स में उतनी बनती नहीं है, उतना इंटरेक्शन नहीं है, ऑब्वियसली कोविड हैज आल्सो प्लेड अ पार्ट, तो कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं एंड सो ऑन। बट कहीं ना कहीं थोड़े से बच्चे चेंज भी हुए हैं, एटलीस्ट दिस इज व्हाट माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर से 16 साल होने वाले हैं, तो आई हैव सीन कि बच्चे जो हैं काफी डिफरेंट टाइप के हो गए हैं देन व्हाट दे यूज्ड टू बी। तो 2020 के बाद तो एक काफी खतरनाक सा डिफरेंस आया है, पर 2016 से भी एक डिफरेंस आया है जिसको कि हम लोग देख पाते हैं, उसके पहले थोड़ा सा अलग था। तो अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड मुझे थोड़ा से एक दो सवाल और भी पूछने थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सपोज कि फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर से ही मोटिवेशन रहता है कि हम सिविल सर्विसेज दें, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो से यूपीएससी हो, तो कैसे उसके लिए अप्रोच करनी चाहिए, दैट वेदर वी शुड गो फुल थ्रॉटल फॉर यूपीएससी एंड देन कम डाउन टू से अ स्टेट पीएससी, या फिर हम पहले स्टेट पीएससी को अपना मतलब गढ़ बना ले, है ना, फोर्टे बना ले, उसके बाद फिर सोचेंगे चलो यूपीएससी भी अगर हो जाए तो अच्छा है। क्या सोचते हैं या किस तरीके से करना चाहिए? पहला तो ये है कि अब पोस्ट 2016 जो एग्जाम हुआ था केएस का लास्ट, अब जो 2018 में एग्जाम हुआ था, तब से यूपीएससी एंड केएस का जो सिलेबस है दैट इज सेम। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई पैटर्न में डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। सो एक चीज तो है कि अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, केएस एक ही चीज है, कोई फर्क ठीक है, ठीक। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों एग्जाम दीजिए। एंड दूसरा ये आप बोलेंगे सर कि फर्स्ट ईयर वाले के लिए उसको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, तो मैं बोलूंगा सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को उसके पास वो टाइम है कि वो एनसीईआरटी उठाए 6 to 12। ओके, ये एज द टाइम थोड़ा एक्सप्लोर करे, और ज्यादा अभी उसको फॉर्मलाइज मत करे पढ़ाई को, न्यूज़पेपर पढ़े। न्यूज़पेपर से मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया, उसको मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि न्यूज़पेपर कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, प्लीज न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़े। मतलब फर्स्ट 3 years 22 तक जब मेरा 10 था, मेरे को नहीं लगता कि हार्डली कोई दिन गया होगा कि मैंने न्यूज़पेपर मिस किया होगा, अनलेस एंड अनटिल कि आपका एग्जाम ही है उस दिन, या वो 7 दिन मेंस चल रहा है 10 दिन, तो उसको छोड़ दूं, उसके अलावा प्लीज। तो फर्स्ट ईयर वाले को मैं बोलूंगा सर न्यूज़पेपर पढ़े, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों से। यूजुअली हिंदू की थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट देन आई रिलाई ऑन हिंदू, क्योंकि मेरे को लगता है जो एग्जामिनर है वो थोड़े से पुराने प्रोफेसर हैं। हाँ, वो हिंदू अंडरस्टैंडिंग से ही आते हैं। यस, तो एक वो मेरा मतलब रहता है माइंड में, बट देन इंडियन एक्सप्रेस इज आल्सो एन एक्सीलेंट न्यूज़पेपर। एक तो ये। दूसरा मैं बोलूंगा सर कि आप थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़िए अभी, जैसे इंस्टेड ऑफ कि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू कर दे, आई वुड रादर से कि आप एक्सप्लोर करिए कि मैप पे क्या है, कंट्रीज कहाँ है मैप पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो इंटरेस्ट नॉर्मल चीजें होती हैं। हाँ, जो नॉर्मल। फर्स्ट ईयर में तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सर एक्सप्लोर करिए, कोई फॉर्मल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड मैं बोलूंगा एकेडमिक्स पे ध्यान दीजिए, जो काफी लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, फिर उसमें सप्ली आती है। और फिर बहुत सारे ऐसे गुरु लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि अरे सीजीपीए से कुछ नहीं होता है ना, एंड स्टफ लाइक दैट। या एकेडमिक्स भी सर इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर इंटरव्यू भी फेस करना है, और इंटरव्यू में जाके अगर 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं बोर्ड को कि एक 6 पॉइंटर है, एक 8.5 पॉइंटर है, तो नेचुरली एक थोड़ा सा बायस तो आएगा ही। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6 पॉइंट वाला अच्छा नहीं होगा, बट देन तो मैं बोलूंगा सर एकेडमिक्स पे ध्यान दे। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर एक बार आप घुस जाए ना उसमें, तो एग्जाम्स में मार्क्स कैसे लेने हैं आप मैनेज कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में बर्डन मत करिए, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड में बोलूंगा सर थोड़ा फॉर्मल करिए। फिर आजकल तो सर बड़े फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन ना पूरे ईयर के प्लान्स आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि उससे बेटर है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स पिक करिए। जैसे आप मान लीजिए आपका 3rd सेमेस्टर है, तो आप पिक कर लीजिए कि इस सेमेस्टर में मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी खत्म करनी है। और अगर एक चीज मैं ये सर और ऐड करूंगा कि हमारे कॉलेज में मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था कि हम कुछ बड़ा यूनिक कर रहे हैं या हम कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज कि डेली वगैरह या जो डीयू में है बच्चे या जेएनयू में है सर, वो फर्स्ट ईयर से फुल थ्रॉटल तैयारी कर रहे हैं, उनके पास नोट्स हैं उस टाइम। सो यू टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, आप ऑर्डिनरी चीज ही कर रहे हो, एंड अगर आपको कंप्लीट करना है तो इट्स मच बेटर एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो जरूरी है तो उसको सर हैबिट में एक अपने टाइम टेबल में प्लीज फिक्स करिए। शाम को 2 ज्यादा नहीं पढ़िए, आप 2-2.5 घंटे ही पढ़िए, बट मोर देन इनफ हो। अगर आप रेगुलरली 2-3 घंटे निकाल रहे हैं तो
ये बोलूंगा। एंड देन सर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स मैं बोलूंगा देन आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर है तो 21 में पास आउट करोगे एंड देन आप एग्जाम दे सकते हो। तो व्हाई नॉट कि आप तैयारी करके ही बाहर निकले कॉलेज से, अगर आप तो यही सर एडवाइस दूंगा मैं तो मतलब जैसे कि सपोज कभी कभार लोग इस पे भी बात करते हैं कि अटेम्प्ट्स कैसे लेने चाहिए एंड दिस एंड दैट, कि सपोज कि मैं सपोज इंजीनियरिंग में आया और फर्स्ट ईयर से मैंने जैसे तूने बोला उस तरीके से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, कुछ चीजें मैंने प्रिपेयर करी एंड दिस एंड दैट, एंड बाय द टाइम आई एम ग्रेजुएटिंग आई हैव से प्रिपेयर्ड, है ना, पहला मेरा जिसको कहना चाहिए कि मैंने एक बार पूरा कवर तो कर लिया है सिलेबस, तो मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ। So shall I take an attempt or shall I leave and prepare seriously and take the attempt next? ये तो थोड़ी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरी तैयारी नहीं थी तो मेरे को तो ड्रॉप लेना ही था एक 1 ईयर का। बट अगर आप थोड़े ऑलरेडी अच्छी तैयारी के साथ आ रहे हैं कॉलेज के बाहर, तो मैं बोलूँगा सर दे देना चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि सर डाउन दी लाइन अगर आप देखो, आप 21 में अगर आप आ रहे हो कॉलेज से बाहर, अब 22 में एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 ईयर का ड्रॉप लिया, 22 के बाद 28 तक अगर आप नहीं पास करते, पास करके फिर तो स्टोरी अलग है, तो आप 28 तक भी अगर आप लगातार 6 अटेम्प्ट्स, बहुत कम लोग होते हैं। अगर मेरे को लगता है मेरे बैच में जब मैं कोचिंग कर रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 100 लोग थे तो आई डोंट थिंक सो सर कि आज 2023 में 10 से ज्यादा लोग पढ़ रहे होंगे, 10 भी शायद। बाकी कोई प्राइवेट में भाग जाता है, 1 अटेम्प्ट देके 2 अटेम्प्ट देके भाग जाते हैं कि यार हमारे बस का टाइप नहीं। तो एक चीज ये फियर थोड़ा अपने से बाहर लाने की जरूरत है कि नहीं हम एक परफेक्ट तैयारी होगी, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी, वो परफेक्शन कभी हो ही नहीं सकती सर इतने बड़े सिलेबस में। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप मॉक टेस्ट, एक तो मॉक टेस्ट से थोड़ा एनालाइज करिए, अगर आपको लगता है कि आप डिसेंट स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, आप प्रीलिम्स में 80s में 90s में स्कोर कर रहे हैं, तो आप लाइन में हैं, है ना। अगर आप 100-120 स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो फिर तो आप अच्छा कर रहे हो, फिर तो मतलब सोचना ही नहीं चाहिए आपको। बट अगर आप 80s-90s में भी कर रहे हो, विच इज अ वेरी डिसेंट स्कोर मॉक टेस्ट में, तो आप 2 साल अटेम्प्ट दे दीजिए, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है आप 1 साल बाद भी सब यही सोच रहे होंगे। क्योंकि हमारे बैचमेट्स हैं, अपने कॉलेज के कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने जब से कॉलेज में तो हार्डली 1-2 अटेम्प्ट दिए, हर साल जब प्रीलिम्स आता है तो देर लाइक कि नहीं हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, इस साल मैं वो वाला एग्जाम दे देता हूँ या दे देती हूँ। आप प्लीज वो अटेम्प्ट दे दीजिए, और ऑल्सो उससे फायदा ये होगा, यू टेस्ट दी वाटर्स, यू नो बॉस की अगर मेरी तैयारी ये थी तो अगर नहीं हुआ मेरे को ये तैयारी करनी इस तरीके से। तो ये बोलूंगा सर, ये थोड़ा पर्सनल भी है। अच्छा, नाउ सिंस यू हैव से क्रैक्ड द एग्जामिनेशन आई हैव गॉन थ्रू एंड ऑन द अदर साइड, तो मतलब कि सीइंग दैट कुछ लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, कुछ टीचर्स का, तेरे डिपार्टमेंट का काफी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, पेरेंट्स का काफी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, फ्रेंड्स का कैसा काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो हु आर दोस पीपल जिन्होंने और कैसे कैसे तेरी जो है मतलब हेल्प करी? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि सिचुएशन काफी टेंस होती है और बहुत परेशान होते हैं लोग, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर तो पहले तो मैं पेरेंट्स से ही बोलूंगा सर, पेरेंट्स का तो मेरा ब्रदर भी है, एल्डर ब्रदर है, जो सपोर्ट होता है सर दैट इज नॉट कंपेरेबल टू एनीवन। थिंकिंग कि सर आई थिंक सो दे आर द ओनली सेल्फलेस पीपल इन वर्ल्ड नॉर्मली इन 99% केसेस में, कि उनको अल्टीमेटली मेरे एग्जाम क्रैक करने से दे आर नॉट गोइंग टू गेन समथिंग, राइट। फर्स्ट मैं ये बोलूंगा, एंड ऑल्सो सर मैं फादर मदर दोनों ही, इवन मेरा एल्डर ब्रदर भी, दे यूज्ड टू टॉक मी आउट ऑफ थिंग्स। कभी कभी जैसे एग्जाम फेल हो गया तो उनको पता है ये रो रहा है या फिर it's not feeling good, so he would talk me out, he would tell me stories कि नेपोलियन के साथ ऐसा हुआ, फिर some remarkable stories, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया था नेक्स्ट मैच में 16 में, या विराट कोहली डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट बैट्समैन देखो तभी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, XYZ कुछ भी, 0 आउट हो गया। सर टीचर्स में मैं बोलूंगा सर कि स्कूल का तो मैं सच बताऊं तो मेरे को ज्यादा याद नहीं है, बट कॉलेज का सर मैं बोलूंगा, कॉलेज के प्रोफेसर्स का जो सर मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस सेंस में बोलूंगा कि सर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो उन्होंने लाया, एंड सर हर टीचर का अपना कंट्रीब्यूशन था। अब मैं कुछ नेम करूंगा, जैसे सर एक आपका ये कंट्रीब्यूशन मेरे पर्सनल उसमें था कि आप अपने, डिस्पाइट कि हमारा रिलेशन क्लासरूम के बाहर क्या है, क्लासरूम के अंदर वो रिलेशन वैसा ही होगा जैसा बाकियों के साथ होगा, बाकियों के साथ होगा। एग्जैक्टली। तो आपको कोई वो फर्क नहीं पड़ता था कि इसका क्या पॉइंट रहा है, ये शरीफ है, यहाँ पे बदमाश है, यू विल थ्रो देम आउट, करेक्ट। सो दिस वाज समथिंग कि एक सर एक डिसिप्लिन आता है, यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर इन द गेम देन यू इन द गेम, तब रूल्स फेयर है।
अब अपने डिपार्टमेंट में मैं बोलूँगा सर एक स्वास्तिक सर, एंड स्वास्तिक सर का सर जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन मेरे साथ रहा कि वो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते थे. ही यूज्ड टू बी लाइक कि यार ये बुक्स वगैरह में क्या है, एंड नॉट दैट ही डिड नॉट वांट अस टू स्टडी, बट द पर्सन हु थोड़ा सा वाइज होगा, ही वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि भाई रटो मत इसको समझो ना. अगर तुम्हें कोई जॉब करनी है तो कोडिंग सीखो ना. एंड अनदर थिंग इज कि स्वास्तिक सर या फिर कुछ एक दो प्रोफेसर से, सूरी सर हो गया, आशीष सूरी सर, दे वुड यूज टू से कि पॉइंटर इतना मैटर नहीं करता, बट उनका जो सर क्रक्स था कहने का, दैट वाज लाइक कि पॉइंटर मैटर तब नहीं करता जब तुम क्लास मिस करके एक्चुअली कोडिंग सीख रहे हो, एक्चुअली गेट कर रहे हो, नॉट दैट तुम कुछ सो रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, बाहर घूमने चले गए हो. सो दैट इज व्हाट आई एक्चुअली डिराइव फ्रॉम देम. और फ्रेंड्स में तो सर काफी हैं, I can't name a few, वरना जिनका नहीं लेंगे तो परेशान हो जाएंगे. वो इस इंटरव्यू के बाद तुझे बहुत फोन करेंगे. बिल्कुल. बट देन फ्रेंड्स का एक अपना एक कंट्रीब्यूशन ये रह जाता है कि बहुत चीजें होती हैं जो हम फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो. ऑब्वियसली. फॉर एग्जांपल कि अगर आप इसमें जॉब ही जाता था, तो जब बैंक में था तो आते थे सर कभी कभी, क्योंकि बैंक की जॉब काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, तो एट टाइम्स ऐसा भी होता था कि 8-8:30 आना, तो एक दो बार तो घर पे आप फ्रस्ट्रेट होके बोल दोगे, बट थर्ड टाइम आप नहीं बोल सकते हो. देन आप वो जो डिस्कशन है ना सर, वो जो उस तरीके की डिस्कशन है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, या मैं इस प्रॉब्लम में मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, या कोई पर्सनल लाइफ में कोई इशू आ रहा है, तो इशू हो गया, तो वो फ्रेंड्स के साथ ही आप डिस्कस कर सकते हो. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सर आपको बहुत सिलेक्टिव होना है उन चीज़ों में. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किन के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, क्योंकि अगर सर लोग पॉजिटिव है ना तो दे पुश यू कि आप अच्छा करो लाइफ में, और अगर वो थोड़े से भी टॉक्सिक नेगेटिव है ना, दे वुड वांट यू टू गेट थ्रू द एग्जाम. तो सर फ्रेंड्स का तो यही कंट्रीब्यूशन है, मैं बोलूंगा कि दे आर विद यू विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ट्रू, वेरी ट्रू. एक ऐड करूँगा सर, मेरा एक कजन है आयुष, तो जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैं उनके साथ रहता था, तो ही इज एल्डर टू मी, बट सर मैं बोलूँगा जो कॉन्वर्सेशन मेरी और उनकी रही है 2-3 साल में, दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल. बहुत जोवियल सी रही है, बहुत अच्छी रही है, बहुत एक सेंस वाली रही है, विजडम वाली रही है. तो उनको भी मैं बोलूँगा सर, उन्होंने भी काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट किया. अच्छा, जैसे कि चलते चलते अगर इफ यू हैव टू provide some suggestions to all the students who are in the SMVDU और जिनका मन है सिविल सर्विसेज को से परस्यू करने का, तो what are your suggestions to them? क्या क्या चीजें अभी, जैसे सपोज कुछ लोग हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और कुछ लोग हैं जो कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है ना, कुछ लोग अभी फोर्थ ईयर में आने वाले हैं, बाकी तो पास आउट हो गए हैं, और कुछ लोग जो थर्ड ईयर में आने वाले हैं इस साल. तो एक मैं चाहूंगा कि कुछ सजेशंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ सजेशंस जो कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए. सर एक तो कॉमन सजेशन ये होगा सर कि ड्रीम बिग, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में आई थिंक सो इंटेल में जॉब करना, या फिर XYZ, इंटेल से जा रहे हैं हमारे कॉलेज से काफ़ी टाइम से बच्चे, या किसी XYZ कंपनी में जॉब करना ऐसा माना जाता है कि इट्स अ बिग थिंग, कि हम क्यों लेंगे. बट द रियलिटी इज कि सर अगर आप में स्किल है, आप में अगर वो कला है, तो ट्रस्ट मी वो कंपनीज आपको ले जाएंगी. आप ओनली अगर आपको ये लगता है नहीं मैं IIT से नहीं हूँ, IIT आपको एक ब्रांड दे सकता है, उनके पास वो एडवांटेज है, उनको वो प्रूव नहीं करना, आपको बस एक प्रूव करना है अपनी वर्थ को. एक तो ये बोलूँगा कि आप अच्छा ड्रीम करिए, चाहे अगर प्राइवेट में जाना है तो. सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं बोलूँगा सर, एक जब आप तैयारी शुरू करने से पहले देखते हैं तो आपको एक माउंटेन दिखता है, इट्स लाइक कि माउंट एवरेस्ट के आप बेस कैंप में हो, आपको दिख रहा है, तो आप उसको, अभी तो मैं बोलूँगा सर द फायर हैज टू बी इन योर बेली, यू हैव टू, इट हैज टू कम इंटरनली फ्रॉम यू, है ना. आप वो मोटिवेशन रखिए, और मैं वापस से बोलूंगा कि यही टाइम है वो डायरी बनाने का. कुछ भी करें, छोटी छोटी चीजें करें, प्लीज वो करो. एंड थर्ड मैं बोलूंगा कि सर द टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, ना. प्लीज डोंट डिले. आप जो किसी भी स्टेज पे हैं, आप तैयारी मत डिले करिए, क्योंकि जितना डिले करेंगे एज के साथ वो एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, आप कोई भी हो. प्रेशर बढ़ता है, फैमिली सोसाइटल बहुत प्रेशर बढ़ेगा टाइम के साथ, बट अभी आप बहुत यंग हैं, आप में वो एनर्जी है, वो ज़ील है, उसको प्लीज यूज करो, उसको हार्नेस करो, घूमो फिरो भी कॉलेज में, एक्टिविटी में पार्ट लो. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अभी आप बिना प्रेशर के पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ सकते हैं वैसे बाद में. सो यही मैसेज रहेगा सर एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ ईयर वालों को, तो कि प्लीज स्टार्ट नाउ.
एंड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों को, फर्स्ट ईयर के लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा कि प्लीज अभी अपने एकेडमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, पहले गेट इन दी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 9 पॉइंटर ही मारना है, बट एटलीस्ट 7.5 टाइप्स की थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। अगर आप उससे नीचे जा रहे हो तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। एंड ऑल्सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार समझ गए इसको मेंटेन करना, तो आपके लिए ईजी होगा जब आप थर्ड फोर्थ ईयर में तैयारी करेंगे, तो यू वुड नो कि यार इतना पॉइंटर लेने के लिए मैं इतना पढ़ूंगा, हो जाएगा। बट अगर आप उसमें ले लोगे फर्स्ट ईयर में, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो जाएगा कि ये तो मतलब आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। सेकेंड ईयर के लिए भी सर मैं थोड़ा ये सिमिलर ही लाइन से बोलूंगा, बट सेकेंड ईयर में मैं बोलूंगा कि अब आप आपने अपने जो स्टार्टिंग का 1 ईयर का मैं बोलूँगा हनीमून पीरियड है वो खत्म कर लिया, तो अब आप प्लीज थोड़ा सा तैयारी को शुरू करिए। थोड़ी यूट्यूब पे टॉपर टॉक्स मैं बोलूँगा विजन वगैरह की बहुत मिल जाएंगी, ये बहुत कॉमन चीज़ है। आप यूट्यूब पे लिखिए टॉपर टॉक्स, यहाँ आ जाएगा, आप वो सुनिए, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए वो क्या बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं सर उसके पीछे 3, 4, 5, 6 साल की मेहनत है ना, 4-5 फेलियर्स हैं, कुछ ही होंगे जो फर्स्ट में निकले होंगे, बट यूजुअली। तो प्लीज उसको आप समझे, अंडरस्टैंड करें एग्जाम का पैटर्न क्या है, डिमांड क्या है, और आप तैयारी शुरू करिए। मैं ये बोलूँगा कि सेकंड ईयर में एटलीस्ट आप बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स में और इन सब, क्योंकि वो चीज़ें सर हेल्प करेंगे पर्सनालिटी में। तो मैं सर यही एडवाइस करूँगा, ड्रीम बिग एंड वर्क वेरी हार्ड। बिना हार्ड वर्क के सर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो अगर तो TCS वगैरह में जा रहे हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। स्टार्ट के लिए ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंपनीज नहीं आ रही हैं आप भूल जाइए, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, बट वहां जाके भी प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर 6-7 घंटे जो भी शिफ्ट होगी उनकी, उसके बाद आके कोडिंग सीखिए अगर आप प्राइवेट में रहना चाहते हैं। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो प्लीज IIM के लिए ट्राई करिए, आपका होगा। हमारे कॉलेज से सिर्फ हमारे जूनियर में देखता हूँ IIM में है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोग के इंटरव्यूज भी लिए हैं, तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। प्लीज ड्रीम बिग एंड वर्क वेरी हार्ड, सर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑप्शनल्स में मिलते हैं, से हमारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से मिलते हैं, फिलोसफी या लिटरेचर से मिलते हैं, कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो इनका कोई इफेक्ट पड़ता है सिविल सर्विसेज में सर? एक चीज तो ये है कि बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ऑप्शनल ही नहीं, तो यहाँ तो यू गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज a dicey thing to do, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट होता है ना। या फिर यूजुअली 90% ऑफ दी जो 95% बोलूँगा जो जनता है, दे गो विद सोशल साइंसेज ओनली। तो ये चीज़ है कि सर आप 3-4 फैक्टर्स को माइंड में लीजिए सिलेक्ट करने के लिए। एक तो सर देखिए कि थोड़ा इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी जो है, इट इज़ अ वेरी फेमस सब्जेक्ट, स्टेट लेवल पे तो खासकर बहुत ज़्यादा है। So it's like कि काफी लोग are running behind it, but मेरे को personally पता है कि I would not do good in it, क्योंकि मेरे डायग्राम्स बनाना I don't have that skill, I was very frustrated, तो इंटरेस्ट भी नहीं था मेरे को उन चीज़ों में। दूसरा मैं बोलूँगा सर आप ये देखिए क्या उस सब्जेक्ट के लिए रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल सर कुछ ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल पर्शियन लिटरेचर आई थिंक एक ऑप्शनल है, तो प्लीज आप ये देखिए, आई जस्ट होप कि ये है, एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। तो आप प्लीज ये जाके देखिए क्या इसके लिए मेरे पास सोर्सेज भी हैं, ऐसा तो नहीं मैं ले रहा हूँ तो बाद में 1-2 ही नोटबुक्स मिल रही है, नोट्स मिल ही नहीं रहे हैं कुछ, है ना। सेकेंड ये। थर्ड में बोलूँगा सर कि आप ये प्लीज देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि आप 3-4 साल ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आपको बार बार पढ़ के वो बोरियत जो होती है, बट उस लेवल की नहीं होनी चाहिए कि आप फिर नोट्स ही ना देखें। तीसरा और चौथा ये है कि सर अल्टीमेटली जो मेरे हिसाब से जो बोर्ड में बैठे हैं PSC में या फिर UPSC में, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सर जो ओवरलैप GS का हो रहा है या ऑप्शनल के साथ सोशल साइंसेज के, वो एक डेफिनेट एक एज देता है। फॉर एग्जांपल जो मैथमेटिक्स कुछ लोग ऑप्शनल लेके कर लेते हैं, ठीक है, वो बहुत रेयर होते हैं। ऐसा अनटिल कि उन्होंने IIT की तैयारी करी हो अपने टाइम पे अच्छी कोटा वगैरह जाके, वैसे यहाँ फिर कुछ लोग बाद में भी पिकअप कर लेते हैं, वही लोग वैसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं मैथमेटिक्स वगैरह, और फिर उसके साथ वो GS भी अच्छा करते हैं। बट देन यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट इज़ अ वाइज चॉइस कि आप ऐसा सब्जेक्ट लें जो, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए लिया था कि उसमें पॉलिटिकल साइंस IR एंड GS2 में IR एक पूरा टॉपिक है, तो 60-70 मार्क्स आउट ऑफ 250 जो है वो IR से ही आ रहा है, तो वो मेरा कवर हो रहा है एक वो। वैसे पॉलिटी GS2 और पॉलिटिकल साइंस काफी ओवरलैप है, सो राइट। वैसे ही सोशियोलॉजी का जो है, सोसाइटी का पार्ट GS पढ़ना है, तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। एंड ऑल्सो सर मैं बोलूँगा एक चीज़ के पीछे मत भागो कि इस साल का टॉपर जो है वो, जैसे इस साल की टॉपर जो है
प्लीज उसके पीछे मत भागो, क्योंकि हमारे ही बैच में सर, अपने केएस में बोलूंगा कि टॉप 20 में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक मैडम है, पॉलिटिकल साइंस भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है ना, तो काफी सब्जेक्ट्स हैं। सो आप प्लीज, अगर आप उन पे अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर करेंगे, बट इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा, बट उसको थोड़ा सा बैलेंस करिए रिसोर्सेज के साथ, उसको बैलेंस करिए। आप अच्छा टीचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एंड सो दैट्स ऑल मैं बोलूंगा आपसे मेरा। इनफैक्ट इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने इसके पहले भी एक सिविल सर्वेंट, मेरे ख्याल से तुम लोग के सीनियर है अक्षय शर्मा, तो हाँ, तो उससे भी बात करी थी, तो उसने भी काफी सारी चीजें बताई थी, एंड उनसे भी बात करी तो इट वाज लाइक वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बचा होगा स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनको उसमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और वो नहीं है। तो we will conclude the interview here, and we will keep the description center, उसमें बहुत सारे links वगैरह और वो सारी चीजें भी भेज देंगे। So it was really really nice, मतलब and amazing talking to you Ratandeep after such a long time, क्योंकि बहुत बार और बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वही है कि टाइम और कभी तुम्हारे पास नहीं, कभी मेरे पास नहीं है, so it always happens like that, but it was good, and I am pretty sure कि ये जो inputs हैं और ये जो, क्योंकि when we used to be like graduating, तो उस point of time पे एक अलग तरीके की बातें चलती थी, फिर बीच में माहौल कुछ दूसरे तरीके का हुआ, अभी अलग है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न काफी चेंज हुआ है, उसके कारण से प्रिपरेशन का स्टाइल भी चेंज हुआ है, एंड सो ऑन, थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड वी रियली हैव टू बी विद पीपल जिन्होंने क्लियर किया है ना। एक होता है कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर होता है, उसके पास बड़ा सारा इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है कि जिसने अभी क्रैक किया है, उसके पास एक अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो चीज थी। It was really nice talking to you, Ratandeep, and it was amazing. And thank you so much for accepting my request as well as talking to me for, say, I guess 1 hour or so. Thank you so much.